Namaskar. My name is Ghumre Chandra Sen. Chapter number 3rd A, Demand Analysis. And today now meet for part number 5. Before going on part number 5, we take a review. In demand analysis part 1, already we focus what is mean by demand. Under the demand, we are trying to understand demand concept. There are comes to the not only your wish, or we can say the desire. There is also require willingness and ability to pay. Right. Then also we discuss in part number 2, demand concepts. Under the demand concept, we are trying to understanding what is meant by individual demand, schedule, and also diagram. Then we focus to the market demand, when more than minimum 2 and more than 2 people comes together and demand the goods. The demand we can say the market demand. Then part number 3. Under the part number 3, we are trying to understand why demand curve slopes downwards from left to right. There are some different reasons. Also one more topic I am missing here, that is the types of demand. And also in part 3, discuss two determinants, or we can say the affecting factors on demand. Right. Then part number 4, that is just last, that is a law of demand. Under the law of demand, we are trying to understand Marshall theory about demand. How is the relationship? When prices is highest, then demand is lowest, and when prices is lowest, demand is highest. That is a simple theory which is based on law of diminishing marginal utility. Right. Then we discuss to the demand schedule to explain that properly law with an example. Then also focus to the explanation. Then diagram, also explanation. To fulfill that law, we assume some conditions. Right. That condition is sometime that condition when never we fulfill, then come to the issue of exception. And exceptional cases, demand curve slopes downwards from left to right. Understand? And today, that is the last topic under chapter number 3A, that is variation and change in demand. So let's see. Now going on the topic, variation and change in demand. Right. This is our today's topic, variation and change in demand. Okay, now we see the first variation mean and change in demand. Right. That is a two concept under the demand: variation related to the price and change related to the other factors. Right. Under the variation in demand, there is extension in demand, and under the here when prices decline, then rise, then contraction. Vice versa, other factors change, that can be the increase in demand or can be the decrease in demand. Now focus one by one. First is variation in demand. Listen carefully. When demand changes due to change in price, it is known as variation in demand. यहाँ पर अभी जरा गौर से आप लोग सुनेंगे. Under the variation in demand, there is only change in prices. What I tell you here? Here, other factors remaining constant. Means which is active is here?
here is active is only price and other factor is constant. At the moment, whatever change in the demand, we can say variation in demand. In short, यहाँ पे no change in other factors, just I told you. Means यहाँ पर taste, habits, income, like, dislike, fashion, इसका कोई भी change नहीं होगा. That all are the constant. So what is change is here? Change in only price. Right? So how is that work? That is extension of demand and contraction of demand. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? वो समझ रहे हैं क्या? यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे फोकस किया है, अदर फैक्टर्स का यहां पे इंपॉर्टेंस नहीं है. इन शॉर्ट, दैट ऑल फैक्टर्स इज अ कांस्टेंट. राइट? मींस यहां पे सिर्फ प्राइसेस में ही बदलाव आएगा, प्राइस एंड क्वांटिटी. राइट? तो चलो फिर हम ये फोकस करते हैं उस पर. तो ये रहा आपके सामने एक्सटेंशन इन डिमांड. व्हाट हैपन अंडर द एक्सटेंशन इन डिमांड? सी हियर, with a fall in price, when more of commodity is bought, there is extension of demand. What happened here? Here just prices of commodity is fall. मैंने ये कलर से यहाँ पे देख रहे हैं आप on screen. ये special word है, that are the prime importance. Fall in price, more commodity is brought, their extension of demand and other thing is remaining constant. तो हम अब ये डायग्राम के थ्रू देखते हैं. X axis quantity demand, that is Q1, and Y axis prices in rupees, that is P1 and P. तो समझ लो यहाँ पे प्राइस P है, OP है, तो क्वांटिटी कितना होगा? OQ. आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डायग्राम है, मेरा एक कर्सर देख रहे हैं? यस. OP जब प्राइस होगा तो OQ डिमांड होगा. जब प्राइस फॉल होगा, कहां से कहां तक? P1 से P1, OP2, OP1. when prices is falls, OQ1 is quantity rise. ये ऑलरेडी हमने देखा है. क्लियर? तो अब ये बोले सर ये डार्कन लाइन क्यों किया पहला? तो ये ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल क्वांटिटी है. अभी चेंज प्राइस क्या हो गया? प्राइसेस इज फॉल्स P2 P1. So that understand to that change, we are purposefully draw dotted lines, and then we come to the curve. That curve slopes downwards, left to right. So which is called extension in demand. ये arrow दिखाता है, down arrow means prices falls, and यहाँ पे horizontal arrow दिखाता है quantity of demand in rise. So ये क्या है? That is called extension in demand. आप समझ रहे हैं डायग्राम को? Have any repetition to the diagram? I think no need to there any repetition. When prices is falls, very simple theory है, यहाँ पे कोई rocket science है ही नहीं. When prices is falls, demand extension. अब याद आ रहा है आपको कुछ थोड़ा? मैंने बोला था लॉ ऑफ डिमांड में, वहां पे कुछ वर्ड है क्या? लॉ में देखिए, इंक्रीज डिक्रीज वर्ड है ही नहीं. प्राइसेस फॉल्स, डिमांड राइज. इंक्रीज बोले तो वहां पे चेंज होता है, वो हमें नेक्स्ट कंसेप्ट में देखना है. आर यू अंडरस्टैंड? तो ये है एक्सटेंशन कंसेप्ट. चलो फिर हम अब यहां पे फोकस करते हैं. दैट इज द व्हाट इज शोन इन द एक्सटेंशन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन विथ राइज इन. अब ये वाइस वर्सा मीनिंग हो गया. जस्ट with rise in price, when less of commodity is brought, there is contraction of demand. Very simple. Again remain other factors remaining constant. अभी देखो ये x एक्सेस पे Q2 Q ये क्वांटिटी है, एंड y एक्सेस पे P2 P ये प्राइसेस है. तो समझ लो अभी ये यहाँ पे है, ये चेंज प्राइस है. ये पहले क्या हो गया? पहला प्राइस OP था, ये OQ हो गया. फिर प्राइस बढ़ा P से P2,
ये डॉटेड लाइन से हमें यहाँ पे शो कर रहा है, राइट? क्लियर? तो ये हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी है। अब ये डायग्राम देख रहे हैं, OP is original price, OQ is original quantity. When prices rises, ये अप एरो दिख रहा है डायग्राम में, prices rise to OP2, OP2, then quantity falls OQ2, OQ2. That is called contraction in demand. समझ गया? Any doubt is here? Yes, that slope of curve is upward now. But left to right upward, right to left, yeah, sorry, listen carefully, right to left upward slope. Clear? Yes. क्यों ये upward क्यों है? Because prices is rise. तो ये हो गया contraction। या भी ये दोनों डायग्राम ये को हम एक साथ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ओरिजिनल प्राइस, OP is price, OQ demand, right? When prices falls, P to P1, then quantity rise Q to Q1. समझ रहे हैं आप डायग्राम में? When prices falls, कहाँ पे हो गया? P to P1, then quantity rise Q to Q1. So ये हो गया डाउनवर्ड स्लोप। उसको बोलेंगे हम B2C expansion और extension. When prices rise, OP to OP2, that is upward, and quantity also decline Q to Q2. Clear? That is a contraction of demand. तो यहां से ये मूवमेंट हो गया, B से A contraction and B to C expansion। और यहाँ पे एरो देखिए आप, ये अप एरो क्या दिखाता है? ये contraction, और ये horizontal एरो लेफ्ट साइड को उसका डायरेक्शन है वो दिखाएगा also contraction। और यहाँ पे ये डाउन एरो दिख रहा है वो दिखाएगा expansion in, that is price falls, and यहाँ पे horizontal arrow शो करेगा expansion और extension in quantity। यहाँ के समझ गया? ओके, उसका एक्सप्लेनेशन में बोलता हूँ अभी इन शॉर्ट में। OX axis shows the quantity of demand and OY axis shows the prices of commodity। जरूर नहीं है समझ, सिर्फ समझने के लिए। Original price is OP and OQ is a quantity. When prices falls P to P1, then quantity rise Q to Q1. Then demand curve movement is B to C, that is downward slope, which is called expansion in demand. When prices rises P to P2, then quantity also falls Q to Q2. And when draw the demand curve, that movement of demand curve B to A, listen carefully or see here, मैं ये यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये मेरे कर्व से, ये कर्सर से माउस के, ओके, B to A, तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन। समझ रहे? वेरी गुड। चलो फिर ये उसको हो गया अभी ये वेरिएशन इन डिमांड। तो ये दोनों से मिलके हो गया ये डायग्राम डिमांड कर्व। तो दूसरा कंसेप्ट है अभी चेंज इन डिमांड। यहां पर आप समझ गए, मगर यानी क्वेरी है आपका? नहीं है। वेरी गुड। तो व्हेन प्राइसेस फॉल्स डिमांड इज एक्सटेंशन, एंड व्हेन प्राइसेस राइज डिमांड इज कॉन्ट्रैक्शन। वेरी गुड। यहां पे सिर्फ प्राइसेस और क्वांटिटी में चेंज हुआ है, और दूसरा भी ये कंसेप्ट है उसमें चेंज इन डिमांड। तो अब ये इसमें क्या चेंज हो सकता है और क्या नहीं? यस, एब्सोल्युटली। यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहेगा और अदर फैक्टर्स एक्टिव होगा। मींस व्हाट इज नाउ? प्राइस इज पैसिव एंड अदर फैक्टर्स इज एक्टिव। वेरी गुड। तो चलो हम अभी इस पे फोकस करते हैं। हाउ इज दैट वर्क एंड हाउ व्हेन डिमांड comes more or less, not due to change in price of product, but due to change in other factors remaining demand। तो यहां पे चेंज होगा, तो वो कैसा चेंज होगा? यहां पे प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा मगर डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ने के और डिक्लाइन हो मींस डिमांड राइज और डिक्लाइन, दैट कैन बी द रीजंस, बट
एक्सेप्शन दैट प्राइस। सो अदर फैक्टर्स हो गए, क्लियर। तो उसको, तो वो कैसे हो गए, ये इनकम, साइज ऑफ पॉपुलेशन, टेस्ट, फैशन एक्सेट्रा कैन बी इम्पैक्ट ऑन योर डिमांड। इन शॉर्ट व्हेन फेवरेबल चेंज, तो हम उसको कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड, और अनफेवरेबल होगा तो डिक्रीज इन डिमांड। वेरी सिंपल। तो नाउ वी फोकस वन बाय वन। फर्स्ट इज इंक्रीज इन डिमांड, क्लियर। पहले हम उसका मीनिंग देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग। एक साइन देख रहे हैं, ये फेवरेबल चेंज दिखाता है, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे नीचे, यस, दैट शोज द फेवरेबल चेंज। व्हेन मोर क्वांटिटी of commodities demanded because of change in factor determining demand other than price, it is increase in demand। समझ रहे आप? मीन्स क्वांटिटी तो बढ़ रही है मगर वहां पे प्राइस डिक्लाइन नहीं हुई, तो क्या हुआ है यहाँ पर, चेंज इन फैक्टर्स। और वो चेंज भी कैसा है, पॉजिटिव चेंज यहाँ पे हमने देखा है। What is in short positive mean that all determinants are positively impact who are the rise in demand। तो हो सकता है इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज पॉपुलेशन बढ़ गया हो, राइज इन सब्स्टिट्यूट गुड्स और चेंज इन टेस्ट फॉर द गुड्स, क्लियर। तो एट द मोमेंट जब डिमांड बढ़ेगा, प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, तो उसको हम कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड। अभी देखिए डायग्राम, एक्स एक्सेस क्वांटिटी, वाई एक्सेस प्राइस, यहाँ पे ओपी प्राइसेस कांस्टेंट है, तो ये हमारा डिमांड कर। अभी क्या हो गया, ये सब में फेवरेबल चेंज आ गया, तो डिमांड इंक्रीज हो गया। तो मुझे बोलिए अभी यहाँ पे, ये यहाँ पे डिमांड कर शिफ्ट कहां पे होगा, अभी ये लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा? नहीं, आप सामने हैं ना डायग्राम के, तो आप बोलिए। यस, राइट साइड को, आपके राइट हैंड को ही वो शिफ्ट होगा। वेरी गुड, क्लियर। क्यों हो गया, तो ये रीजन है, बहुत सारे रीजन, तो हमने सिलेक्टिव रीजंस लिए हैं। तो ये डॉटेड लाइन से हमने दिखाया यहाँ पर, वो क्यों डिमांड बढ़ा, क्योंकि ये सब रीजंस यहाँ पे थे। तो ये आप देख रहे हैं, सो DD1, तो इसको हम कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड। एनी क्वेरी हियर प्लीज? तो आप समझ गए हैं, आई थिंक, ऐसा मैं सोच रहा हूं। यहां पे अदर फैक्टर्स में पॉजिटिव चेंज को हमने देखा है, और दैट पॉजिटिव चेंज कैन बी राइज योर डिमांड। यहाँ पे वही पॉजिटिव चेंज आपके डिमांड के फेवर में आ रहा है, राइट, ओके। तो हम अभी, ये हो गया इंक्रीज इन डिमांड। सो नाउ वी फोकस ऑन डिक्रीज इन डिमांड। जब चेंज अनफेवरेबल होगा तो एब्सोल्युटली डिमांड भी डिक्रीज होगा, राइट। दैट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। तो ये साइन दिखाता है डिमांड बढ़ नहीं रहा, यहां पे डिमांड कम हो रहा है, तो मीनिंग अपोजिट है उसके। व्हेन लेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज डिमांडेड बिकॉज ऑफ चेंज इन फैक्टर्स determining demand other than price, it is an decrease in demand। यहाँ पे प्राइस अगेन कांस्टेंट होगा, मगर जो फैक्टर वहां पे फेवरेबल थे, तो यहाँ पर अभी वो अनफेवरेबल हो गए, क्लियर। बोले सर ये अनफेवरेबल कैसे हो गए? अरे भैया, हमने वहां पे फोकस किया था ना, इनकम बढ़ा है, पॉपुलेशन बढ़ी है, टेस्ट पे हैबिट प्रेफरेंस चेंज हो गया, तो अभी उसका अगेंस्ट हो गया। समझ लो कि जॉब लॉस हो गया। अभी ये देखो देश में लॉकडाउन का सिचुएशन, तो बहुत सारे लोगों का ये क्या हो गया, परचेसिंग पावर ही नहीं रहा, जो था मनी वो कंजम्पशन पे गया। मैंने आज ही न्यूज़ पढ़ा कि आरबीआई ने कमर्शियल बैंक ने डिपॉजिट किया है समथिंग 8
lakh crores in RBI, बिकॉज मनी को डिमांड ही नहीं है उतना, क्योंकि अभी ये इकोनॉमी थोड़ा सा स्लो हो गया, समझ रहे आप? तो ये प्राइस तो उतना ही है कमोडिटी का, बट चेंज इन अदर कंडीशन। सो अब ये अदर कंडीशंस का चेंज हो गया तो आपका डिमांड 100% डिक्लाइन होगा। क्लियर? तो यही हम उस पे फोकस कर रहे हैं यहाँ पर। सो दैट कैन बी द चेंज वी कैन सी हियर। सो दैट इज decrease in income of consumer, decrease in population, change in taste against the goods। तो अब ये डायग्राम देखिए, अभी ये OP is a price and OQ is quantity demand, ये ओरिजिनल डिमांड कर। तो अब ये क्या हो गया, सब ये अनफेवरेबल चेंजेस हो गए, तो ये डिमांड डिक्लाइन हो गया, तो ये कर लेफ्ट साइड को हमारे शिफ्ट हो गया। वेरी सिंपल, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस है नहीं। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये ओपी प्राइस, ओपी डिमांड, ये यहाँ पे ये डीडी डिमांड कर है, ये यहाँ से ये सब फैक्टर्स में निगेटिव चेंज हो गया, तो ये प्राइसेस कांस्टेंट है मगर अदर फैक्टर्स निगेटिवली वर्क, सो डिमांड कम हो गया। ये नया डिमांड कर यहाँ पे बना हमारा DD2। अभी ये दोनों डायग्राम्स को हम एक साथ ड्रॉ कर सकते हैं क्या? Can we show that both the diagrams in one diagram? Absolutely, there is answer is yes, we can show in a one diagram। बोले सर ये कैसे पॉसिबल है? बहुत इजी है, चलो मैं अब आपको दिखाता हूं ये कैसे बनते हैं। ओपी प्राइस, ओके क्वांटिटी, ये ओरिजिनल प्राइस, ये ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल डिमांड कर, अब ये फेवरेबल चेंज हो गया, तो ये हो गया इंक्रीज इन डिमांड। समझ में रहे? डायग्राम में देखिए भाई, समझ में आया? ये फिर से मैं आपको दिखाता हूं, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी, ये डिमांड कर है, यहाँ पे प्राइसेस कांस्टेंट है, और ये यहाँ पे डिमांड बढ़ा क्योंकि फेवरेबल चेंज हो गया। वाइस वर्सा, ये अनफेवरेबल चेंज हो गया, जो अभी तक जो एक्टिव फैक्टर्स थे अभी वो निगेटिवली वर्क, फैक्टर तो वही है मगर वो डिमांड में बढ़ावा नहीं दे रहे। एब्सोल्युटली ये क्या हो गया, डिमांड कम हो गया। क्लियर? OQ2 OQ2 समझ रहे? तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक भी खत्म होता है और ये चैप्टर नंबर 3A दैट इज द डिमांड एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट होता है। भाई ये बहुत लास्ट टाइम की तरह ये टॉपिक था, थोड़ा सा टाइम लगा आपको समझने में। आई नो दैट डिमांड कंसेप्ट में हमने अभी तक स्टडी किया कि ये डिमांड क्या है, और वन स्ट्रॉन्ग डिमांड देयर इज रिक्वायर सम इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक्स। आपको सिर्फ विश होने से नहीं चलेगा, तो क्या बोलते हैं उसको, डिजायर से काम नहीं चलेगा। आपके पास उसके लिए पैसा होगा और वो यू आर रेडी टू पे, वो भी होना जरूरी है। देन कुछ फीचर्स पे हमने फोकस किया, देन आल्सो सम टाइप्स ऑफ डिमांड पे भी हमने फोकस किया। उसके बाद हमने दो कंसेप्ट देखे डिमांड के, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। देन व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बहुत सारे रीजंस देखे उसमें, वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। उस पर हमने फोकस किया कि सम is the reason, there is one law, basis of law of DMU is one of the reason is there, कि जब तक प्राइस और यूटिलिटी इक्वल नहीं होता तब तक हम उसको डिमांड करते हैं। एट द इक्विलिब्रियम ऑफ बोथ, तो वहां पे हमारा वो डिमांड स्टॉप होता है, राइट? तो वो हमने डिमांड कर्व वाई स्लोप्स डाउनवर्ड्स में देखा।
Then we see that all factors who are the can change your demand, that is the affecting factors, or we can say in short determinants of demand, right? उसके बाद हमने उस पे फोकस किया, लॉ पे। और लॉ के पॉइंट याद है भाई, एक कोई भी लॉ हो तो उसके 8 पॉइंट जरूरी है। पॉइंट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉ। उसमें ये लॉ किस भाई साहब ने लिखा है, उसका नाम ये, आप तो मार्शल के देने, ये दोनों भी लॉ है मार्शल के ही है, उसका बुक का नेम। दूसरा पॉइंट होगा बेसिस ऑफ लॉ, लॉ का बेस क्या है, ये भी हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे लॉ का बेस है लॉ ऑफ डीएमयू। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, व्हेन प्राइसेस इज राइज डिमांड डिक्लाइन, व्हेन प्राइसेस इज फॉल डिमांड राइज। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लॉ का अच्छा एक्सप्लेनेशन होने के लिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है तो उसको बोलते हैं हम शेड्यूल एक्सप्लेनेशन, दैट इज पॉइंट नंबर 4। देन पॉइंट नंबर 5, डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन। यस, I again request my dear students, when you write in answer in paper, exam paper, then you write both schedule and diagram explanation separately. जरूरी है भाई, हम दोनों समय का खाना एक साथ तो नहीं खाते ना, लंच और डिनर का, तो ऐसा ही समझ लीजिए आप, तो हम सेपरेटली लिखेंगे। तो ये नंबर पॉइंट नंबर कितना हुआ, 5। 6 में होगा एजम्पशंस, उसको हम बोलते हैं सेटर्स पैराव्यूज, अदर थिंग भी कांस्टेंट। ये लॉ अप्लाई होने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए, उसको हम हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। देन एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ, की सम कंडीशंस है इस लॉ में जो रियल है, नॉट ओनली शोज टू हियर, दैट कंडीशन पे भी हमने फोकस किया। एंड लास्ट, जो कि मैंने यहाँ पे पर्पसफुली नहीं दिया, वो है कंक्लूजन, दैट इज पॉइंट नंबर 8। तो बोले सर क्यों नहीं दिया, मैंने एक्सप्लेन तो किया है ना उस चैप्टर नंबर 4 के पार्ट में। ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स है, आपका व्यू क्या है, जब ये आप लॉ देखेंगे तो उसको अपने कंक्लूजन में उसको एक्सप्लेन करना है। एंड देन यहाँ पे जो अब ये चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 5 चल रहा है, तो यहाँ में देखा वेरिएशन एंड चेंज इन डिमांड। वेरिएशन में प्राइस एक्टिव होता है और अदर फैक्टर्स पैसिव होता है। व्हेन प्राइस इज फॉल, डिमांड इज एक्सटेंशन, एंड व्हेन प्राइस इज राइज, डिमांड इज कॉन्ट्रैक्शन। वाइस वर्सा, जहां पे प्राइस कांस्टेंट होता है और अदर फैक्टर्स एक्टिव होते हैं, उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। When favorable change in factors or determinant, then demand can be increased. Vice versa, जब फैक्टर्स में अनफेवरेबल चेंज होगा तो प्राइस वहां पे रहेगा मगर डिमांड कम होगा, उसको बोलते हैं हम डिक्रीज इन डिमांड। तो यहां तक तो हमने स्टडी किया है, हमारा चैप्टर नंबर 3A तक का हमारा स्टडी कंप्लीट हुआ है। चैप्टर नंबर 3B, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उस पे हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट पार्ट में। तो चलो फिर यहाँ से मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।